Hello friends, welcome once again. Now in this video, we'll take the second part of the previous video where I've spoken about the syllabus for the SSB interview, and I told you about the YLC syllabus. YLC stands for Young Leadership Course, which is conducted at OTA for the service candidates. So I in fact had conducted a gap analysis workshop, many of you attended, and I told you that I'll put the syllabus in the Telegram channel, A4SUPI channel, but I decided not to do that because even if I put that, you will get a theoretical sheet of that. You may not understand what needs to be done. So I decided to make a video itself, maybe in 2/3 parts I'll make it. So this YLC syllabus is conducted at the Young Leadership Course at the Officers Training Academy, Chennai. And here, if you remember, in 2019 there was this article, newspaper article, you can also see it in the internet, that the army to train Jawans to become officers. So basically the army service entry candidate, they also have to go to the service selection board interview, and the training for them is of 5 months duration, unlike your training which is for 5 days to 2 weeks that you go through private coaching centers. Here the training is of 5 months duration, which is pretty long, and the training is essentially the same that you have to train yourself, that is for the SSB interview. So it will be of interest to know why it is for 5 months, whereas the people like us who are involved in private coaching, we claim कि हम आपको 14 दिन में कर देंगे and all those things. So you also understand that it's a personality based selection, and there are 4 dimensions to it, that is your physical quotient, intellectual quotient, emotional quotient, and the value quotient. So let us see what is this YLC course all about and why it is 5 months unlike private coaching centers. Now in couple of videos, previous videos, I've told you begin with the end in mind. So all of you are a candidate who wish to get recommended from the SSB, and this is the path that you have to take, and within that there are various obstacles. So I've referred to that 7 habits of highly effective people. Begin with the end in mind. So that once. Second was I referred to the Vivekananda article that if you take care of the means, the end will take care of itself. So means adapted to achieve the goal. Unfortunately, today in the coaching industry, like people like us who are involved in the coaching, we on one side we claim the clearance rate is 3.6, whereas on the same breath we say in 5 days will transform you. We have made the entire SSB so simple that पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि SSB का syllabus is stage 1 PIQ OAR है ना, TAT WAT GDGP फट्टा बल्ली ये सब है, ऐसा लगता है CIQ वगैरह कर दो. And I established in the last video that it is not so, and I got for a it was quite humbling. बड़े दिनों के बाद AFOC पे किसी वीडियो को 5000 से ज़्यादा व्यूअरशिप मिला, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद. बिकॉज मेरे को तो 1-1.5 हज़ार से मिलता नहीं है, बिकॉज शायद आप लोग मेरी बात को समझते नहीं हो, बट इस वीडियो में मुझे 5-6 हज़ार से ज़्यादा मिला है, एंड देयर ऑलमोस्ट 180+ कमेंट्स. सो आई एम ग्रेटफुल टू यू. दैट मीन्स कहीं ना कहीं शायद कुछ तो कनेक्ट हुआ आप लोगों के साथ में. एनीवे, गुड दैट यू हैव अंडरस्टूड मी. नाउ बिकॉज वी क्लेम, वी मतलब प्राइवेट SSB कोचिंग, जैसे हम लोग जो ISO सर्टिफाइड लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि SSB का सिलेबस ये है, तो उसके मुताबिक किसी भी आप कोचिंग सेंटर में चला जाओ, स्टैंडर्ड प्रोग्राम ये देते हैं आपको, फिलिंग अप द PIQ फॉर्म, ऑल दोस थिंग. आई विल नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज आई विल पुट इन द आई बटन. तो आपने देखा होगा स्टेज 1 टेस्टिंग, GK हो गया, साइक टेस्ट हो गया, PIQ फॉर्म, थोड़ा ब्रीफिंग, मॉक इंटरव्यू. पता नहीं मॉक इंटरव्यू क्या होता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं है. मुझे तो मॉक इंटरव्यू, मॉकरी इंटरव्यू ज़्यादा लगता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है जो एक को सामने बैठा के. एनीवे, तो ये सब हम करते हैं. एंड देन वी ऑल्सो नो कि डॉक्टर मानस के मंडल, हु इज़ द डायरेक्टर DIPR, हु वॉज, एंड ही इन वन ऑफ द हाई लेवल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, when he was asked about the selection system, he spoke about the average officer concept, which will again I'll give on the I button, and he spoke about he himself, he goes to the SSB not one times, so many, whatever number of time, he says he will not get recommended. अब सवाल ये है कि अगर SSB का सिलेबस इतना ईजी है, ये TAT WAT करा के सिग्नेचर कोर्स, तो वाई डॉक्टर मानस के मंडल इज सेइंग दैट ही कैन नॉट गेट रिकमेंडेड. नाउ फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, आई वांट यू टू लिसन दैट, बिकॉज मेरी बात को आप तभी समझोगे जब इसको एक लॉजिकल तरीके से समझोगे. एक इलॉजिकल तरीके से लूप 1 पे, मतलब आपको लुभाने के लिए नहीं बोल रहा, एकदम कड़वा सच बोल रहा हूँ. और ये जो वीडियो है वो मेरा नहीं है, डॉक्टर मानस के मंडल का. सो लेट्स लिसन टू इट. 2 मिनट का वीडियो है, उसके बाद मैं इसको आगे लेके जाऊँगा. Taken by service officers. We only have the veto power. We only can say if somebody has not to be taken.
We never say who is to be taken. So there is a difference between who is not to be taken and who is to be taken. We put the service selection board in such a manner that even Dr. Kalam failed actually in Air Force selection board. Our scientific advisor to Dr. Samantri, Dr. Saraswat and others also, they all attempted, they all failed. Actually, I asked him this question, then he said, don't ask me what was the outcome. I appeared for it, I can tell you, but don't tell me what was the outcome. So it's very difficult. If I go, I control the selection system, but I go, I'll fail, I know. I'll fail and I'll not be able to do that. 100 times I can guarantee I'll never be able to do that. So that's what the credit in the selection system. So this was Dr. Manas K. Mandal, who says 100 times I can guarantee that if I go, I will fail, even though I control the service selection board. So एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सिलेबस ये नहीं है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, SSB कोचिंग प्रोग्राम. किसी भी चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, नासिक चले जाओ, बैंगलोर आ जाओ, पुणे आ जाओ, यही सिलेबस है. हमने ये बनाया, बट ये नहीं है. और अगर ये इतना ईजी होता तो हमने देखा है कि फिर तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, द्रविड़, क्या ये लोग ये TAT नहीं रटने के कारण हुआ है? तो आई टोल्ड यू, जो आपका कन्वेंशनल कोचिंग जो हम लोग प्राइवेट कोचिंग सेंटर कराते हैं वो आपको इस सिलेबस पे कराते हैं और आपके ऊपर एक नकाब लगा लेते हैं, और SSB इसको ढूंढ रहा है. तो डॉक्टर मानस के मंडल ने इसके बल पे बोला कि मैं नहीं होऊंगा, और आप इस कोचिंग के भरोसे पे आप SSB जा रहा, आपको बोलता हो जाऊंगा. सो देयर इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड, है ना, मेरी बात को समझना. सो उसके बाद ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का है. सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लड़के NDA के लिए जाते हैं, 10+2 TS के लिए जाते हैं, वेरी यंग एज, 16 से लेके 19 तक के बीच के, 16.5 से, नो, तो यंग टेंडर एज. और ये लोग भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं हम लोगों की तरह. और देखो इनका पैरा 2 में क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है. पैरा 2 में ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का प्रिंसिपल है, इसको मैं हाईलाइट किया हुआ. क्लियरिंग द रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज NDA का जो UPSC, इज रिलेटिवली ईजी फॉर आवर कैडेट्स. एकेडमिक्स है, बट वेरी फ्यू क्वालिफाई SSB प्राइमरली फॉर लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन. इसका मतलब ये सिलेबस पढ़ने से आपका SSB का ओरिएंटेशन नहीं होता, यह आपको समझना पड़ेगा, है ना. सो दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूँ बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग. बट वेरी फ्यू क्वालिफाई द SSB प्राइमरली फॉर लैक ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन. आपने देखा प्रॉपर को इटैलिक्स किया हुआ है ना. दिस इज इंस्पायर्ड ऑफ ट्रेनिंग एट वेरियस प्राइवेट कोचिंग अकेडमीज, हमारे जैसे ISO सिग्नेचर कोर्स, that tend to do more harm than good. Look at the word, private coaching academies that tend to do more harm than good, and you are paying us so that we damage you more. That's the thing. So दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग में आपको मास्क लगाया जाता है. आपको पता, मैं बातें नहीं बोलूँगा, डेड बॉडी का ड्रामा, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, कोर क्वालिटी छुपा दो, ये सिखाते हैं. ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता, ये आपके ऊपर हम एक नकाब लगा देते हैं. असली बंदे का जिसका पर्सनालिटी डेवलप करना है, इसको छोड़ देते हैं. इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. उसके बाद ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, आपने देखा होगा, इसी कोचिंग के ऊपर लिखा हुआ प्री कंसीव्ड नोशन एंड रॉन्ग कोचिंग. प्री कंसीव्ड नोशन मतलब कोचिंग वाले आपके अंदर कुछ भर देते हैं कि आप भैया बी पॉजिटिव, डेड बॉडी को ड्रामा बना दो, लोड नहीं उठाना, है ना, कैंटिलीवर बनाओ, आई एग्री विथ यू बोलो, चंडीगढ़ चले जाओ तो 10 कमांड टास्क 2 PGT करा देंगे. ये कहाँ, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो है ही नहीं. तो आपका इसमें इसके कारण एसिमुलेशन, पोर कम्युनिकेशन, नेगेटिव, प्री कंसीव्ड एंड रॉन्ग कोचिंग. ये देखो रॉन्ग कोचिंग, ये मेरा लेटर नहीं है ना. और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका IQ का प्रॉब्लम है. क्यों IQ का प्रॉब्लम है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल, पुअर टाइम मैनेजमेंट, ऑल दोस थिंग्स. तो अभी हम ये लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करेंगे कि थोड़ा सा हम अपने इस एनालिसिस करने का, अपने इस बुद्धि को इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे कि हम अपने IQ को थोड़ा बढ़ा लें, बजाय कि हम ये TAT में उलझ के रह जाए, मलमूत्र में फंस गए, है ना. तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ जो आपको मेरी बात को समझना और SSB की सही तरीके से तैयारी करना, डॉक्टर मानस के मंडल के स्टेटमेंट को सीरियसली लेके, और YLC का जो कोर्स दिखा रहा हूँ, आपको अपने सोच में, एटीट्यूड में, वृत्ति में चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज दिस ओल्ड माइंडसेट कि SSB का सिलेबस वो है जो ये ISO वाले हम लोग दिखा रहे हैं. नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है. मैं भी तो कोचिंग कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये नहीं है. मैं कौन सा, मैं भी तो कोचिंग करा रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग आपको करा रहे हैं, जो
14 दिन में TAT WAT SRT करा के आपको छोड़ देता है, ये SSB का सिलेबस नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए आपको माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और माइंडसेट को बदल के एक क्रिटिकल थिंकिंग, सर्पदृष्टि डेवलप करना पड़ेगा, और तभी जाके आपको जब समझ आएगी तो आपके पुराने बिलीफ सिस्टम टूटेंगे और नया बिलीफ सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। मैं पिछले 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, अब जाके मेरी बातों को थोड़ा बहुत आप सुनते हो, लेकिन मेरा तरीका बहुत मेहनत का है, शॉर्टकट नहीं है ना। तो एटीट्यूड या माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं गौतम बुद्धा के एक स्टेटमेंट को मैं आपको लिखता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? एक लंबा सा पैराग्राफ है, उसको समझना। ये मेरा बात नहीं है, ये गौतम बुद्धा का है, किसी ISO का सर्टिफिकेशन का नहीं है। गौतम बुद्धा बोलते हैं, ध्यान सुनना, ये आप लोगों के लिए भी मेरे लिए भी लागू है। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट। किसी चीज को सिर्फ इसलिए ना विश्वास कर लो क्योंकि आपने कहीं से सुना है कि SSB में B पॉजिटिव होता है ना। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज इट इज स्पोकन एंड रूमर्ड बाय मैनी। किसी चीज को इसलिए भी विश्वास नहीं करना क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर, क्रैक SSB बोल रहा है, उधर ISO वाले बोल रहे हैं, उधर नागपुर में बोल रहे हैं, इधर पुणे में मैं बोल रहा हूँ, उधर बैंगलोर में कोई बोल रहा है, इसलिए भी विश्वास नहीं करना। Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books। मतलब रिलीजियस बुक में लिखा उसको भी नहीं मानो। हम तो कोचिंग के साले वो 200 रुपये के बुक्स में बांधते हैं जहाँ पे लिखता है कि स्प्रिंकल ऑयल क्यूज एंड हाइड कोर क्वालिटी। तो ये तो बोलते हैं कि भगवान के जो बुक्स हैं उसको भी डायरेक्टली मत मानो, उसको भी आप एक लॉजिकल तरीके से समझने को। डो नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स। सो सिर्फ इसलिए भी नहीं मानना क्योंकि टीचर्स, और यहाँ पे हम तो SSB में तो टीचर्स भी बड़े पोजीशन वाले, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, एक्स कमांडेंट्स होते कुछ लोग, तो एक्स GTO, एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सिर्फ क्योंकि हमारा रैंक बड़ा है हमें विश्वास नहीं करना। ये मैं नहीं बोल रहा, गौतम बुद्धा बोल रहे। दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूँ। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग मेयरली ऑन द अथॉरिटी। हम लोग बड़े अथॉरिटी बने, हम लोग एक्सपर्ट बोलते हैं अपने आप को। अथॉरिटी ऑफ योर टीचर्स। यहाँ पे टीचर्स कौन है? कर्नल गणेश बाबू। मुझ पे विश्वास नहीं करना, मैंने नहीं बोला, गौतम बुद्धा ने। ऑन योर टीचर्स एंड एल्डर्स सिंपली बिकॉज दे आर टीचर्स एंड एल्डर्स, यू हैव टू लॉजिकली थिंक। नेक्स्ट बोलता है, डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशंस बिकॉज दे हैव बीन हैंडेड ओवर डाउन फ्रॉम जनरेशन। तो यहाँ पे रेकमेंडेड कैंडिडेट की मत सुनना क्योंकि वो भी अपना रेकमेंड, कुछ तो साला बिना रेकमेंड के कैमरा लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या रिवील कर रहे हैं। सो डोंट बिलीव। नेक्स्ट बोलता है, बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। क्या बोलता है? बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it। गौतम बुद्धा बोलता है, किसी का कहा, किसी बुक में लिखा, किसी कोचिंग वाले ने बोला, किसी मेजर ने बोला, किसी मेजर ने बोला, किसी गणेश बाबू कर्नल ने बोला, विश्वास नहीं करना। कब तक? जब तक हमारी बातें आपके तर्क शक्ति, आपके ऑब्जर्वेशन और आपके एनालिसिस में खरा नहीं उतरता। मतलब लूप 2 बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हेन यू फाइंड दैट एनीथिंग एग्रीज विथ रीजन, जब आपको एकदम तसल्ली हो जाए कि हाँ डेड बॉडी का ड्रामा कराना यही SSB देख रहा है। जैसे किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक में बोला है स्प्रिंकल ऑयल क्यों, यही देख रहा है। अगर कन्विंस हो जाते हैं तब करो, अगर कन्विंस नहीं होते हो कंफ्यूज हो जाओगे। SSB का ट्रेनिंग शुड ब्रिंग क्लैरिटी इन योर परसेप्शन, बट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग क्लैरिटी, इफ इट इज ब्रिंगिंग कंफ्यूजन, यू हैव टू क्वेश्चन अस। तो मैं, क्योंकि आप नहीं कर रहे, मैं कोचिंग वाला हूं, मैं आपके लिए करके दूंगा। तो मुझे भी विश्वास नहीं करना क्योंकि मेरा भी स्वार्थ हो सकता है, मेरा भी तो स्वार्थ हो सकता है। तो मुझे भी विश्वास नहीं करना जब तक मेरी बातें आपके तर्क पे ना उतर जाए। तो ये मेरी बात नहीं है, ये किसकी बात है? ये है क्या बोलते हैं, गौतम बुद्धा जी का, है ना। तो आपको ये जो आपके प्रेजेंट पोजीशन से रेकमेंड होने के लिए ये जो सिलेबस है, ये आपके जो टीचर्स है ना, ये टीचर्स का रैंक क्या पता है? मेजर से लेके मेजर जनरल तक है। विश्वास नहीं करना, हमारा स्वार्थ छुपा है, इंक्लूडिंग मी। हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, यही है SSB का सिलेबस। कैसे हम ये 14 दिन का मॉड्यूल लेके 2 PGT 2 HGT 10 कमांड टास्क कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा।
इससे पहले आगे जाऊं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना। अफ्रीका में जो ट्राइबल्स थे वो बंदर पकड़ते थे खाने के लिए। तो कैसे पकड़ेंगे? बंदर तो भागता था उछल कूद के। तो बड़ा सिंपल तरीका था, वो नारियल लेते थे और इसको क्या करते, एक छेद करते और इसके अंदर मूंगफली डाल देते थे, और मूंगफली डाल के क्या करते, उसको चेन से बांध देते। तो इसका जो होल होता है वो होल खुला रहता है। तो बंदर क्या करता है, उसके अंदर आता है और उसके अंदर हाथ डाल देता है और मूंगफली उठा लेता है। लेकिन पंगा ये है कि जब मूंगफली उठाता है तो जब अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ ओपन होता है, इट इज ओपन, बट व्हेन इट गोज इनसाइड एंड टेक्स द क्या बोलते हैं, पीनट, इट बिकम्स अ फिस्ट. So the hole is so much that the hand goes when it is open, but when it becomes a fist, it gets caught. So once the monkey picks up the peanut, it becomes a fist और उसका हाथ उसमें फंस जाता है. Now what happens? The hunter comes और उसको आता, दो डंडे मारता है, monkey खत्म. क्यों खत्म? Monkey could have run away, लेकिन monkey भागता नहीं है क्योंकि उसने अपना मूंगफली पकड़ा and he does not want to leave the मूंगफली. और फिर उसका साले का चिकन बना देते हैं, मंकी चिकन मार के काट के खा जाते हैं. इतनी आसानी से मंकी पकड़ा जाता है. क्यों पकड़ा गया मंकी? क्योंकि मंकी ने जब देखा हंटर आ रहा है, उसे पता खतरा था, लेकिन वो मूंगफली नहीं छोड़ पाया. उसने मूंगफली पकड़ लिया और वो सोचा मूंगफली के साथ भागूंगा. इस चक्कर में वो हंटर ने आके इसको मार दिया. दिस इज द वे अफ्रीकन्स ट्राइबल यूज टू कैच मंकी. और एक बार नहीं 50 बार. देखो यहीं पे 2 मंकी मरे पड़े हुए. आप भी कहीं ना कहीं एसएसबी के ट्रेनिंग में इस मंकी की तरह फंस गए हो और आप एक ऐसे लूप में घूम रहे हो कि आप एफर्ट तो बहुत लगा रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हो उस चूहे की तरह. इट इज़ स्केलर एफर्ट. आपको इस मंकी की तरह इसे छोड़ना पड़ेगा. अगर आप इसे नहीं छोड़ोगे तो आप इस एसएसबी के धोखे में फंस जाओगे. टीएटी डब्ल्यूएटी में हम घुसेड़ के रख देंगे और आप यहीं लटकते रह जाओगे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द ट्रेनिंग दैट वी आर गिविंग इज फॉल्टी ट्रेनिंग. मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो ना मानो. ये सिग्नेचर कोर्स जो 5 दिन में आने से बोलते हैं कि ना ये दिस इज़ अ कंपल्सरी कोर्स, ये हमारा 5 डे का है, इसमें तुमको स्टैंप लगा देंगे, कुछ नहीं लगा सकते. इससे हम आपको एसएसबी का प्रोसीजर सिखा देंगे. हमारा एक्सपर्टीज़ उससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमको असेसमेंट आता है, डेवलपमेंट नहीं आता. अगर डेवलपमेंट आता तो डॉक्टरेट करके हम ऐसी बात नहीं करते कोर क्वालिटी छुपा दो. साइकोलॉजी में मास्टर्स करके मैं ये नहीं बोलता कि डेड बॉडी का ड्रामा बना दो. दिस कंप्लीटली डिस्टॉर्शन. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, लॉर्ड मैकेले ने ख़राब किया था. आज हम ऑफिसर्स ख़राब कर रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ है. सो डोंट ट्रस्ट अस. हम तुम्हें मूंगफली खिला रहे हैं, किस में डाल के? नारियल में डाल के, और तुम्हारा साला ये बंद हो जाता है. इसलिए तुम्हारा परसेंटेज कितना है? 3.6. मैंने नहीं बोला, कमांडेंट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, एक्स कमांडेंट, उन्होंने बोला है. लेकिन खिला क्या रहे? मूंगफली. हम क्या खिला रहे हैं तुम्हें? मूंगफली. आपको इस मूंगफली को छोड़ना पड़ेगा. आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा. एसएसबी के पूरे अप्रोच को आपको अगर समझना है तो आपको एसएसबी को देखना पड़ेगा. एक है ड्यूरिंग एसएसबी आपका क्या होता है? पर्सनालिटी असेसमेंट. और एक बिफोर एसएसबी होता है जहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, एंड सेकंड उसका एसएसबी का ओरिएंटेशन करना है. और एक बार सेलेक्ट हो गए तो आप ट्रेनिंग में जाते हो. तो ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेनिंग तो बाद की बात है. तो ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे पोटेंशियल ऑफिसर को क्या कर देंगे? पोटेंशियल कैंडिडेट को ऑफिसर बनाते हैं. लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल का टेस्टिंग किसने करना है? एसएसबी ने. तो ये तो हमको प्रोसीजर पता ही है. तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ताकि मैं आगे जो बोलूँगा वो आपको समझ में आ जाए. जब आप एसएसबी में जाते हो ड्यूरिंग एसएसबी, वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे पर्सनालिटी का असेसमेंट है. मतलब आपका जो भी पर्सनालिटी है उसको वो एसेस कर देंगे. उसको करने के लिए 3 लोग, मानसा, वाचा, कर्मणा. तो एसएसबी में क्या हो रहा है? पर्सनालिटी असेसमेंट. तो अगर एसएसबी में पर्सनालिटी असेसमेंट होता है, एसएसबी से पहले क्या होना चाहिए? अगर एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन तो एसएसबी से पहले क्या होना चाहिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए. अब वो खुद कर लो या किसी कोचिंग में चला जाओ. फॉर एग्जांपल, अगर आप एकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट मेरे पास आते हो तो मैं तभी क्या बोल रहा हूँ कि एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. तो हमारा 90% एम्फेसिस किस में होना चाहिए? इसको डेवलप करने के लिए. एंड 10% क्या होना चाहिए कि भैया क्योंकि एसएसबी पहली बार जा रहे हो, मानसा, वाचा, कर्मणा क्या है, तो यहाँ पे वो टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी ये सब होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या कर दिया है, आज हम आईएसओ वालों ने और ये सिग्नेचर कोर्स वालों ने हमने क्या कर दिया है, हमने इसकी बात ही नहीं करते. हमने पूरा का पूरा ट्रेनिंग बना दिया इसके ऊपर.
और जब आप इसके ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने अपने ऊपर कुछ काम नहीं किया, लेकिन आपने एसएसबी का प्रोसीजर सीख लिया और इसको तोड़ने के लिए हम हाइड कोर क्वालिटी सिखा दिया, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, सिग्नेचर कोर्स एंड 10 कमांड टेस्ट। तो आप क्या कर रहे हो, आपने खुद का विकास नहीं किया, लेकिन आपने उन टेस्टों के ऊपर तैयारी कर लिया ताकि किसी तरह से उसको क्रैक कर दो। सो दिस ट्रेनिंग दैट यू आर डूइंग इज क्रैक एसएसबी मॉडल, क्रैक एसएसबी मॉडल। और इसमें बहुत लोग नंबर 1 हो गए, मतलब आपका गंद मचा दिया है। आई डोंट नो, ये स्लाइड समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना। तो आपको समझ में आया होगा कि एसएसबी का जो सिलेक्शन है वो पर्सनालिटी बेस है, तो उसकी तैयारी में पहला और मेजर पार्ट होना चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको पता है एफएसयू वीडियो से बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तब आपको डॉक्टर ये मानस के मंडल जिन्होंने ये बोला था कि आई कंट्रोल द सिलेक्शन सिस्टम बट आई 100 टाइम आई कैन गारंटी इफ आई गो आई विल नॉट गेट रिकमेंडेड, इन्होंने बोला कि भैया ये जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, ये फाउंडेशन कोर्स है और ये एसएसबी का ओरिएंटेशन। तो ये हो गया 90% और ये हो गया 10%। दिस इज द मॉडल दैट आई एम प्रोपोगेटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही, हम आपको टीएटी डब्ल्यूएटी में उलझा दिया। अगर ये पिछले वीडियो में समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं तो एएफओसीपी का लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मैं बोलता हूं, जो कि डीआईपीआर का डायरेक्टर मानस के मंडल ने उसको स्टैंप मारा हुआ है। नाउ दिस इज डेफिनेटली इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसमें आज अब मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ, मैं अगले 1 हफ्ते के बाद इसको बिल्कुल इस मॉडल पे लाने वाला हूँ कि हम उसमें एएफओसीपी का भी प्रोग्राम करेंगे प्लस एसएमएल का भी, और ये दोनों मिला के 2-2 वीक का कर रहे हैं। और इसको करने का एम यह है कि इस पे भी काम करना है और इस पे भी काम करना है। अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं हो रहा, तो अभी कुछ दिनों से बड़ा ट्रेंड आ गया कि लोग इधर ज्वाइन करते हैं, सडनली इधर आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा नो, डोंट डू दिस, यू टेक ए कंपोजिट वो, because अभी जब when I show you the YLC का, this is what they are doing, so please do it yourself also. So those of you who are interested in the AFOSOP leadership and personality development program, not orientation to only SSB के TAT WAT, I will suggest you go for this composite क्या बोलते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल, एंड देन इसके लिए इफ़ यू वांट टू रजिस्टर यू हैव टू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एट 8275577650। कौन सा नंबर? 8275577650। सेंड मी अ व्हाट्सएप नंबर। द बैच स्टार्ट्स एवरी मंडे, ऑल दोज डिटेल्स आई विल शेयर इट। सो अभी नेक्स्ट इज कमिंग मंडे, सो एवरी मंडे यू कैन एक्चुअली व्हाट्सएप मी whenever you want, and I'll send you the details and share this. Now even if you don't want to join, at least take the syllabus from me कि what are we doing under this self management leadership, and then you will find there's a correlation between what I'm going to show you now in terms of the YLC wala. So I hope you have understood. So send me a message at 8275577650 and I'll recommend you, खासकर जिनका जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमजोर है, जिनको क्लैरिटी नहीं है, जिनको एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता, डोंट कम फॉर दिस बिकॉज दिस इज जस्ट सिंपली 2%. व्हेन यू गो थ्रू दिस एंटायर मॉड्यूल यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी. सो फॉर्चुनेटली मेरी बात आपको समझ में आ रहा है. नाउ देयर इज अ ट्रेंड कि पीपल आर कमिंग फॉर दिस. पहले तो सिविल सर्विस वाले आते थे बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग भी. नाउ अब क्योंकि मैंने अपने बारे में बताया कि एएफओसीपी में 90% इज पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, 10% इज दिस. नाउ इसी लाइट में लेट अस सी दी ओटीए का कोर्स. मैं इस कोर्स को 2 या 3 पार्ट में करूंगा ताकि मैं टाइम दे सकूं. दिस वीडियो में बिकम लिटिल लेंथी बट आई होप यू विल बियर विद दैट बिकॉज इट विल बी यूजफुल एंड आई वांट यू टू वॉच इट टिल द एंड. एंड लास्ट में मैं कुछ फीडबैक भी मांगा हुआ है. सो लेट अस सी वाईएलसी. वाईएलसी स्टैंड फॉर यंग लीडरशिप कोर्स. तो इसका मैं आपको ब्लॉक सिलेबस और ये दिखाऊंगा. इसका एम ये है 2 चीज़. पहला, आपको जो मूंगफली पकड़ के रखा बंदर की तरह उसे छोड़ना पड़ेगा. दूसरा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको इन डायमेंशंस को तैयार करके फिर एसएसबी जाना है. इसको छोड़ के एसएसबी नहीं जा सकते, नहीं तो बंदर की तरह मारे जाओगे. कोचिंग वाला भी मारेगा और एसएसबी भी मारेगा, दोनों तरफ से पिटोगे. सो लेट अस सी. इट इज़ अ 5 मंथ ट्रेनिंग मॉड्यूल. सो आपको ये लेटर मैंने पहले बता दिया, आर्मी टू ट्रेन जवान. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग है कि इसमें दिया हुआ है, आपको ये लेटर मैं दे दूंगा इंप्रूविंग कम्युनिकेशंस के लिए. नाउ इफ़ यू रीड दिस यू विल रियलाइज कि इसमें जो वाईएलसी का एम है, ये आर्मी का एक सोल्जर है, इज ऑलरेडी अ डिसिप्लिन सोल्जर. इस सोल्जर को एक ऑफिसर में परिवर्तित करने के लिए जो ट्रेनिंग है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर एंड अ सोल्जर? आफ्टर ऑल बोथ ऑफ देम आर सोल्जर. अ सोल्जर, a good soldier cannot become an officer. A soldier plus चाहिए. What is that plus? That is the YLC का syllabus.
एक सोल्जर हो सकता है, दिस सोल्जर अपीयर्स टू बी मोर फिटर देन एन ऑफिसर, बट इज स्टिल अ सोल्जर. So you may be a good soldier, but a good soldier does not qualify to become a good officer. Now, whatever this is applicable to a soldier, it is also applicable to all entries from NDA to TA. Only thing is, you are not a soldier. The background may be different. NDA वाला कम एज का है, उसका ट्रेनिंग लंबा होता है, ट्रेनेबिलिटी ज़्यादा है. TGC वाला 27 साल का है. So let us not worry about ये सर्विस एंट्री का, बिकॉज SSB तो सबके लिए सेम होता है. सो लेट अस सी दिस, एंड दिस यू विल सी दिस इज अ कंफर्ट जोन से बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर का धक्का है. तो हम देखेंगे नाउ थ्रू द AFSOP का वीडियोस. आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि SSB का प्रिपरेशन इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, एंड आवर पर्सनालिटी कंसिस्टेड ऑफ 4 डायमेंशंस. इट इज लाइक 4 टायर्स ऑफ द कार, एंड हमें हर टायर के ऊपर काम करना पड़ेगा. द फर्स्ट लेवल इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड द वैल्यू डायमेंशन. नाउ व्हेन आई शो यू द YLC का सिलेबस, यू विल रियलाइज कि अनलाइक इन द प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, सिग्नेचर वाले और YLC वाले, हियर सॉरी नॉट YLC, ISO वाले, यहाँ पे all the 4 factors are covered, all the 4 factors. And if you want to understand from the point of क्या बोलते हैं officer like quality, factor 1 IQ, factor 2 EQ, factor 3 social effectiveness as leadership, and factor 4 dynamic. इन सब के ऊपर काम किया हुआ है. तो आपको भी सबके ऊपर काम करना पड़ेगा. आज आप किसी पे भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ रट्टे पे काम कर रहे हो, तो उसको चेंज करना पड़ेगा. सो हम देखते हैं. सो YLC का पहले तो हम देखेंगे ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड्स कैसे दिया हुआ है. इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा. इस वीडियो को आप इसको अपने नोट्स भी बना सकते हो बाद में. तो इन्होंने ऐसा किया हुआ है, टोटल अगर 100% है, टोटल अगर 100% है, तो YLC का डिवीजन देखो कैसा. फिजिकल फिटनेस, PT और गेम्स को उन्होंने 10% वेटेज दिया हुआ है. नाउ ये 10% एक्चुअली आप लोगों के लिए कम है, बिकॉज फौजी है ये, फौजीज आर ऑलरेडी एडिक्वेटली फिट. तो इट इज सिंपली बिकॉज वो तो यूनिट में डेली PT करते हैं, आप लोग नहीं करते. देन बिकॉज दे आर सर्विस कैंडिडेट, तो इसमें ड्रिल इनका लगाया हुआ है 5%. सो 10% + 5, सो 15%. तो आप लोगों को ड्रिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रिल तो फौजी ड्रिल होता है, वो तो जब आप एकेडमी जाओगे दे विल एनीवे टीच यू. सैनिक स्कूल वगैरह RMC वो तो सीखते हैं बिकॉज दे आर स्कूल. बट फॉर मेनी ऑफ यू NCC वगैरह तो दे डू इट. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सीरियल नंबर 1 and 2, बट यू हैव टू कलेक्टिवली वरी अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, है ना. नेक्स्ट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर 29%, मतलब ऑलमोस्ट 30% वेटेज, 30% वेटेज या 1/4 वेटेज जो है किसके ऊपर दिया हुआ है, पब्लिक इंग्लिश के ऊपर, यानी कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन. पावर ऑफ एक्सप्रेशन ये ब्लॉक सिलेबस है, मैं इसके ऊपर डिटेल बताऊंगा. नेक्स्ट देखो सीरियल नंबर 4 में लीडरशिप एथिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर अगेन 24-25, मतलब 1/4, मतलब एक चौथाई कम्युनिकेशन स्किल, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, और 1/4 लीडरशिप डेवलपमेंट. सोच के देखो कितना ज़्यादा दिया हुआ है. और हम किसी कोचिंग सेंटर में जाओ इसकी बात ही नहीं होती, सीधा हम TAT WAT चढ़ा देते हैं. नेक्स्ट ये इसकी आपको ज़रूरत नहीं है. IT ट्रेनिंग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्योंकि वो फौजी होते हैं, कुछ लोगों को एक्सपोजर नहीं होता, तो उसके लिए तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. जो आता आता, नहीं आता नहीं आता, ठीक है ना. नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के ऊपर 8% दिया है, लेकिन ये कम है मुझे लगता है. इसको यहाँ पे इसलिए कम है क्योंकि ये 30% यहाँ पे, तो एक्चुअली ये 30 + 8, 38%. इसका मतलब है 1/4 से भी ज़्यादा वेटेज है. कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला. यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कितना लिखा हुआ, 8, बट इसको 8 देख के ऐसा नहीं लगना कि ये कम है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 29% यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड 8% इसमें दो, तो टोटल इसको मिला दिया तो टोटल एक्चुअली हो जाता है 37% वेटेज. तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज द गन एंड कंटेंट इज द एमुनिशन. ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. तो डोंट कंफ्यूज विथ 8, इट इज नॉट 8, क्योंकि आफ्टर ऑल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग में बोलोगे क्या, यही सब तो है. तो ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एक्चुअली यहाँ पे देखने में मिसलीडिंग लगता है. सो क्लब इट एंड इट बिकम्स 37, मोर देन 1/4 ट्रेनिंग हो गया. नेक्स्ट लास्ट में देखो मजे की बात, SSB का जो ओरिएंटेशन है वो सिंपली कितना % दिया हुआ है, 10%. 10%, यानी बाकी 90% कहाँ पे है, 90% इज लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट जो ये किए हुए. तो ये सब मिला दो, तो इसको भी इधर मिला दो क्योंकि आफ्टर ऑल इसी का टेस्ट है ये. तो टोटल 10% इज SSB plus 90%. This is what is AFOSOP and this is SML.
तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच का कोरिलेशन। नाउ ये ब्लॉक सिलेबस है, मैं क्या करूँगा इसको ज़रा ब्रेक डाउन कर देता हूँ, क्योंकि ये इसको हम एक बार ब्रेक डाउन कर देते हैं। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व द सिलेबस, आपने देखना यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के बारे में भी किया हुआ है। कहाँ पे है फिजिकल फिटनेस, ये रहा, और ये भी फिजिकल फिटनेस में ले लो। इंटेलेक्चुअल फिटनेस में आप ये इंटेलेक्चुअल फिटनेस में ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन के कनेक्टेड हो गया, लीडरशिप, एथिक्स, ये सब जब करोगे, जब इन सब करोगे तो आपका ये तीनों डेवलप होने वाला है। ना इसको छोड़ दो। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स या आईक्यू से रिलेटेड है। ओरिएंटेशन एसेस भी ये पूरा का पूरा हो गया। तो आपने देखा होगा कि इसको जब पूरा खोलेंगे तो यू रियलाइज दे आर टचिंग ऑल 4 टायर्स ऑफ योर कार। आपके लाइफ के चारों डायमेंशन को वो टेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू द रिप्लाई। नाउ लेट अस सी फिजिकल डायमेंशन में वो क्या करता है। नाउ ये सिविलियन एंट्रीज के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविलियन एंट्री को ये करने की जरूरत नहीं। क्या करना है मैं अगले 2 स्लाइड के बाद दिखाऊंगा। बट वैसे सर्विस एंट्री लोगों के लिए वहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पीटी कराते हैं। अब वो कोई एसएसबी में रेलेवेंट नहीं है, वो आपको फौजी हैं, तो इसलिए आपको ना ट्रेनिंग टेबल कार्ड, अब ये आपको पता है जरूरत नहीं है। बाकी सिविलियन एंट्री को फौजियों को भी एसएसबी के लिए जरूरत नहीं, बट वहाँ पे वो कराते हैं, दैट्स ओके, क्योंकि आप फौजी हो। फिर आपका बीपीटी, फिर आपका पीपीटी, स्टैंडर्ड ऑब्स्टिकल टेस्ट है ना। स्टैंडर्ड ऑब्स्टिकल टेस्ट मतलब आप लोग तो वैसे ही फिट हो तो इतना ज़्यादा। फिर फिजिकल इंडिविजुअल फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट, तो ये तो फिजिकल ट्रेनिंग है। नाउ एंड योगा, दैट इज़ फॉर माइंड का फिटनेस, माइंड एंड सोल का फिटनेस के लिए, तो योगा भी कराते हैं। तो आपने देखा कि इसमें 85 पीरियड इसमें पीटी का लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने। बट आप सिविलियन कैंडिडेट्स को क्या समझना है, फिजिकल फिटनेस एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। उसके बाद इन्होंने ड्रिल के ऊपर दिया हुआ है ना, फिजिकल फिटनेस एंड सेकंड ड्रिल भी था। तो ड्रिल में फुट ड्रिल, राइफल ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है सिविलियन एंट्री को एसएसबी के लिए, क्योंकि ये सब एसएसबी का मतलब नहीं है। ये जब ट्रेनिंग में जाओगे, क्योंकि ये फौजी है वो कर रहे हैं, तो आपने इस पूरे को मिला के कहाँ करना है, फिजिकल फिटनेस फिट करना, अपने आप को फिट कर लो। कैसे करना आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा आपको पता है गेम्स, तो वाईएलसी में बहुत ज़्यादा गेम्स के ऊपर भी एम्फेसिस है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे वॉलीबॉल करो, ये करो, कैंप करो, मिड फायर करो। आपको बेसिकली ये सब मिला के, हाँ गेम्स आपको चाहिए, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू में CIQ itself is there, what sports and games you play। सो अभी अचानक करके कोई मतलब नहीं, आपका PIQ में आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। बट फौजियों के केस में सिंस दे आर फिजिकली फिट, सो दीज एक्टिविटीज आर देयर टू मेक श्योर दैट दे आर फिजिकली एक्टिव एंड नॉट दैट कि बुक के कीड़े बन जाए। सो कुल मिला के आप लोगों को सिविलियन एंट्री को ये समझना है कि फिजिकल फिटनेस के ऊपर इतना जोर अगर लगा रहे हैं, तो आप भी जब एसएसबी में जाओगे तो आपको भी इसके ऊपर काम करना है। 2 टास्क जो एसएसबी में डायरेक्टली फिजिकल फिटनेस पे है, एक है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और दूसरा है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो ये 2 टास्क डायरेक्टली ऐसे हैं जो फिजिकली डिमांडिंग है। बाकी पीजीटी में फट्टा फुट्टा बल नहीं चढ़ना, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ डेप्थ, वो सब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन डायरेक्टली जो फिजिकल को टेस्ट करता है वो GTO है, वो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। साइकोलॉजिस्ट आपको फिजिकली नहीं देखता, वो आपके PIQ पे देखता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आप फिजिकली दिखते हो, आपका ना लंबा चौड़ा सब दिखते हो, मोटे हो, पतले हो, प्लस उसके पास PIQ इन्फॉर्मेशन है, कैन ऑलवेज, सो दे डोंट टेस्ट यू ऑन फिजिकल, दे ओनली वेरीफाई फ्रॉम वेरियस अदर, so they have an indirect method. GTO has got a direct method. Now many of you may be extremely physical fit, like for example सैनिक स्कूल, RMC, सर्विस एंट्री कैंडिडेट, नॉट ऑल। PCSL में कुछ क्लरिकल्स होते हैं, वो भी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि क्लर्क होते हैं, PT में नहीं जाते, मकरा मारते हैं, मोटे हो जाते हैं। मोस्टली सर्विस एंट्री, NCC, दिस आर ऑल फिट एंट्री। तो कभी कभी तो सर्विस एंट्री में ये आ जाते हैं कमांडोज, ब्लैक कैट्स एंड ऑल दैट, एक्सट्रीमली फिट। बट एक बात आपको समझना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस इज ए नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। मुझे बताना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मुझे कमेंट्स में लिख के देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं ये बोल रहा हूँ जो लोग एक्सट्रीम फिजिकल फिट है, ये मत सोचना कि आप सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बेस पे चले जाओगे, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इज ओनली 1/4, देयर आर अदर 1/4। आपको इन 1/4 पे भी उतरना पड़ेगा। सो यू मे बी ए फिजिकली फिट पर्सन बट दिस इज ओनली दिस, व्हाट अबाउट दिस? So there are 3/4 others. So you have to be intellectually fit, emotionally fit and value fitness. So इसके ऊपर काम करना और मुझे कमेंट में बताना। Now certain physical activity that the academy recommends. Academy मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अकेडमी, दैट बिफोर यू ज्वाइन। नाउ दिस इज बिफोर यू ज्वाइन द अकेडमी, क्योंकि वहाँ पे बड़े स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, चोट लग जाती है, क्योंकि बॉडी ट्यून नहीं होता। नाउ दिस कैन बी इम्प्लाइड स्ट्रेट अवे दैट यू कैन प्रैक्टिस दिस फॉर बिफोर गोइंग फॉर योर SSB इंटरव्यू ऑल्सो। लेट मी शो यू व्हाट आर दोस। सो ये जो मैं बता रहा हूँ किस चीज़ के लिए, ये दिमाग के लिए नहीं है, ये लेवल 1 के लिए। व्हाट इज लेवल 1? फिजिकल, PQ, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। सो
यू नो रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज भैया। फौज में तो हर दिन सैटरडे को छोड़ के राइफल क्लीनिंग होता है सैटरडे को, बाकी सारे दिन लगभग पीटी होता है, भागते हैं 5-6 किलोमीटर तगड़ा। तो आप लोग शुरुआत के लिए 5-6 किलोमीटर जॉग कर लो, वॉक कर लो, जो भी करना, बट यू हैव टू। अभी कोरोना है सो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, बट बेस्ट इज़ 5-6 किलोमीटर का रन। कुछ लोग तो मेरा तो छूट गया थोड़ा बहुत, कुछ लोग तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो आदत नहीं छोड़ते, विच इज़ फैंटास्टिक। सेकेंड इज इससे आपका एंड्योरेंस बहुत बिल्टअप होता है, लंग्स कैपेसिटी बिल्टअप होता है, बिकॉज 5 किलोमीटर अगर आप भाग पाओ तो लंग्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, द हार्ट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड योर एंड्योरेंस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड योर मेंटल स्टैमिना टू विथस्टैंड दैट 5 किलोमीटर का प्रोलॉन्ग एक्सर्शन। सेकेंड इज 400 मीटर स्प्रिंट, इससे क्या होता है स्टैमिना बढ़ता है, शॉर्ट स्प्रिंट एकदम बिजली की गोली की स्पीड से। थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभी तो कोरोना है, थोड़ा बाद में, है ना। पुशअप्स, उससे आपका ये शोल्डर मसल्स और अपना बिल्टअप होगा, तभी आपका रस्सा होगा। इट्स नॉट अबाउट एसएसबी तो बड़ी छोटी चीज़ है, उसमें तो सारा जीओआर और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस ही होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल एंड क्या होता है जो वो। बट व्हेन यू गो टू द एकेडमी इट इज एक्सट्रीमली डिमांडिंग। आई शो इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो पुशअप, पता है ना क्या बोलते हैं, प्लैंक आप क्या बोलते हो, बेंच स्ट्रेच। ऐसा बैठो भैया, अपने स्टमक को मजबूत करो, पेट के मसल्स को इतना मजबूत करो कि साला एसएसबी में जाओ ना, ऐसे यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी एजाइल, नॉट दैट कि मेरे जैसा गोल हो गया, नो, यू हैव टू बी वेरी वेरी एजाइल। देन लटक के पुलअप्स, ताकि आपके अपर बॉडी जो है मजबूत हो जाए। पुलअप्स है ना, योर अपर बॉडी, वहाँ पर रस्सा रुस्सा चढ़ना उतरना होता है, साला हाथ से ऐसे लटकते हैं जैसे कद्दू लटका हुआ है, खासकर लड़कियाँ, नॉट ओनली लड़कियाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, इवन लड़के, बिकॉज आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इट इज़ बिकम सो बुक वॉर्मिश कि हम लोग इन एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं। सो इफ यू एस्पायर टू बिकम ए मिलिट्री ऑफिसर, टू टेक केयर ऑफ दिस, देन यू हैव टू प्ले सम गेम्स, बास्केटबॉल। इससे दो फायदा है, एक तो फिजिकली फिट रहते हो, सोशल इंटरेक्शन होता है, और आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये सब में भी बहुत इंप्रूवमेंट है, स्पेशली व्हेन यू प्ले टीम गेम, नॉट कि चेस खेल रहे हो या हला वो खेल रहे हो, पिंग पोंग खेल रहे हो, टिकटॉक खेल रहे हो, नहीं वो सब नहीं, बाहर जाके, अभी नहीं, आफ्टर कोरोना, ठीक है ना। बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश, ये सब एक्सर्शन वाले गेम हैं, तो इससे आपका बॉडी एकदम टोन अप हो जाएगा। एंड डेफिनेटली बिसाइड दैट, देन वेट हैज़ टू बी मैनेज, वेट मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग। अदरवाइज वी हैड दिस बॉय शाश्वत आर्यन करके, आई विल शेयर हिज नंबर्स इफ यू वांट, समबडी कैन आस्क मी। नाउ दिस बॉय वाज सो गुड, बट उसको साला वो ओवरवेट में फंस गया। एक और लड़की थी बॉम्बे की, उसका नाम भूल गया, वो भी ओवरवेट में फंस गए। फिर उसके बाद आपको 40 दिन मिलता है, फिर 40 दिन भागते रहते हो, तो इतना तकलीफ की वजह अगर अभी से मैनेज कर लो। सो दिस इज़ द वेट टेबल फॉर मेन, सो दिस इज़ द एज एंड दिस इज़ द हाइट। तो आपका एज और हाइट जो भी है, फॉर एग्जांपल आप मान लो 22 ईयर्स के और आप 170 हो, तो 22 एंड 170 मतलब आपका 58 kg होना चाहिए। इसमें प्लस एंड माइनस 10% जोड़ दो, तो 58 का 10% मतलब 5.8 kg, प्लस भी चलेगा माइनस भी, इससे ऊपर हो जाएगा वो आपको टेम्पररी अनफिट कर देगा और 40 दिन का टाइम देगा। और 40 दिन में अगर आपने कर लिया तो ठीक है, तो आप इस टेबल को चेक कर लेना। और उसी तरह से ये लड़कियों का, अगर ये टेबल सेपरेटली चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सअप में ऑन दिस नंबर 8275577650 एंड आई विल शेयर दिस। तो लड़कियों का भी उसी तरह से, बहुत सारी लड़कियाँ जो ओवरवेट में फंस जाती है, खाते पीते घर की हैं, एक्सरसाइज करती नहीं, गोल हो जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा आपका जो भी एज है और जो भी है, इसमें कितना प्लस माइनस 10% ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी, इतना चलेगा ना, अंडरवेट चलेगा ना ओवरवेट। सो ध्यान रखना। नाउ आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग इतना मेहनत करते हो, कोचिंग में इतना पैसा खर्च करते हो, ये सब करने के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो एनडीए वगैरह में या जाते हो कहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर में, तो ये देखो, ये 40 कैडेट ड्रॉप आउट ऑफ इंडिया अनेबल टू कोप विद द रिगर, मतलब 40 कैंडिडेट, कैन यू इमेजिन 40 कैंडिडेट्स इसलिए एनडीए से बाहर चले गए क्योंकि उन्होंने फिजिकल एनडीए का जो ट्रेनिंग है वो झेल नहीं पाए। मतलब आप क्या है, आइसक्रीम हो, मक्खन बन गए हो, मक्खन तो एनडीए में नहीं चलेगा, तो उधड़ जाएगा, लोहा चाहिए ना उन्हें, ये कॉपर चले गए गलती से, पता नहीं किस कोचिंग का रट के चले गए थे। तो आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो इस कैंडिडेट की तरह इसको पढ़ सकते हो। 40 cadets drop out. What a sheer wastage of national resource, both in terms of time, effort and the energy that you put and the organization has put. SSB का time जाया, academy का time जाया, so painful. So please read this. So ये तो हो गया physical. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो मॉड्यूल देखेंगे वो देखेंगे कि फिजिकल से उठ के लेवल 2 दैट इज इंटेलेक्चुअल, और उसमें भी हम सब नहीं देखेंगे। इंटेलेक्चुअल में आपको पता है 4 OLQs है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। वी विल जस्ट सी द पावर ऑफ एक्सप्रेशन विच इज द
फैक्टर 1 का 4th OLQ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब आपको पता है ECHS इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो हम ब्लॉक सिलेबस देखेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। आपको पता है कि दोनों मिला के 37% है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल प्लस कंटेंट बिल्डिंग, इतना वेटेज है इसको। अब ये क्यों वेटेज है, आपको पता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन का जो SSB का डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझ लो। इसमें बोला है, मैं इसको डिटेल में नहीं बोलूँगा, इट इज़ द एबिलिटी टू पुट अक्रॉस वंस आइडियाज एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी। तो एडिक्वेटली के लिए आपको एडिक्वेटली होना चाहिए, विथ ईज के लिए आपको गन अच्छा होना चाहिए, एंड क्लैरिटी के लिए अगर इनर क्लैरिटी होगा तो वो इनर क्लैरिटी आउटर क्लैरिटी बन के आ जाएगा, बट अगर इनर क्लैरिटी नहीं है तो आउटर नहीं होगा। एंड टुडे एफएस प्रिविलेज बैच में बंदे इतने कंफ्यूज जाते हैं, यू आर राइटिंग समथिंग इन TAT एंड व्हेन आई एम आस्किंग व्हाट इज दिस, दे डोंट नो व्हाट इज दिस, दे आर आस्किंग सर ये ठीक है। अप्रूवल सीकिंग, ये कोचिंग का बहुत बड़ा एक डैमेज है। मुझे बताना व्हाट इज अप्रूवल सीकिंग। अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, कैंडिडेट TAT लिखता है और चंडीगढ़ का कोचिंग वाले बोलते हैं पूछो वो बताते या नहीं। अरे भैया हमसे पूछोगे तो तुम्हारा अप्रूवल सीकिंग हो जाएगा। चंडीगढ़ वाले भाई गलत बोल रहे हो। आपने कैंडिडेट को एम्पावर करना है कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को खुद डिसाइड। अगर एक लड़का TAT के छोटे से डिसीजन को इंटरप्रेट नहीं कर पाता अपना, तो क्या साला मिलिट्री लीडरशिप करेगा, और क्या वो कोचिंग के बैसाखी पे चलोगे? बैसाखी पे नहीं चाहिए। वो सर गलत बोल रहे हैं चंडीगढ़ वाले को ने। उन्होंने लिखा है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कोचिंग सेंटर। उनके 15 पॉइंट है, 15-16। वन ऑफ देम इज, क्या वो तुम्हारे TAT चेक करके तुम्हें बताते हैं? अगर मैं तुम्हारी TAT चेक करूंगा तो तुम क्या चेक करेगा? नो, लूप 2 ठीक करना है, लूप 1 नहीं। कोचिंग वाले सर गलत बोल रहे हो, आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। नो, तो आपको पता है कि आपका गन ये लेके जाना और इस तरह की गोलियां लेके जाने से आप क्या कम्युनिकेट करोगे? तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज है और ये आपका एमुनिशन है, कंटेंट। आपको भाषा पे भी काम करना पड़ेगा और विचारों पे भी काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो ये ECHS इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक लड़के का आज कॉल आया बिहार से, बोला सर मैं बिहार में हूँ, मेरे को बहुत इच्छा है, आपके वीडियोस देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सर इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, कैसे करूँ? मैंने कहा ऐसे ऐसे वैसे। बोला सर कोई मिलता नहीं है सर, कुछ ऐसा चीज़ बता दो आसानी से हो जाए। मैंने कहा यार आसानी से तो बच्चा पैदा नहीं होता, इंग्लिश कैसे हो जाएगा? जिस तरह से हिंदी सीखा उस तरह से करना पड़ेगा। सो देयर आर वेज टू डू दैट। ये माइंडसेट ऑफ यार कैसे करूं, दिस इज़ अ वेरी हेल्पलेस माइंडसेट। अगर किसी चीज़ को करना है तो लगन होनी चाहिए यार। तो एक सुरभि गौतम करके एक लड़की है, टेड टॉक में दिया है, किसका नाम है? सुरभि गौतम, सिविल सर्विसेज में क्लियर हुई है। उसने देखना कैसे इंग्लिश किया। एक वो एयरफोर्स का कॉपल था जो IPS ऑफिसर बना, SSB क्लियर किया, गया ही नहीं। पता नहीं आपको देखा होगा, उसका नाम भूल गया मैं, उसको चाहिए तो लिंक शेयर कर दूंगा। एयरफोर्स का कॉपल था, SSB क्लियर हो गया लेकिन गया नहीं। बोला सर मेरा एम SSB नहीं है, मेरा एम है तो सिविल सर्विस में जाना है, मेरे को तो IPS बनना है। लोग बोले पागल है, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था, उसने भी बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया। मैंने इम्प्रूव किया यार, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल किया मैंने, तो बहुत कुछ इंप्रूव किया। मैंने तो अपने ऊपर वीडियो भी बना रखे हैं और भी क्लास में भी बोलता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को करना है। नेक्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास कंटेंट होगा, कंटेंट मतलब गोली होगी, बंदूक होगी हल्का हल्का चलता, लेकिन हल्का हल्का नहीं चलना, वो इफेक्टिव होना है। इफेक्टिव होने के लिए ट्रिपल सीज ऑफ कम्युनिकेशन। और आपको पता है ये आर्मी का, ये लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का, है ना। इसमें देखो पॉइंट 1 में अल्फा में लिखा पुअर कम्युनिकेशन स्किल। तो पुअर इसी की तो बात करते हैं, पुअर कम्युनिकेशन स्किल। उसमें भी 3, रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। रिटन वर्बल एंड नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज। और आपको पता है रिटन, ये जो वर्बल है, वर्बल मतलब वर्ड्स, योर वर्ड्स आर ओनली 25%, रेस्ट इट इज 75%। और आप लोग फालतू में सवाल पूछते हो सर लेक्चरेट में हाथ हिलाना चाहिए, पाँव हिलाना चाहिए। अरे तेरा हाथ हिले पाँव हिले वो अलग, बट तेरे अंदर कंटेंट ही नहीं है, तेरी डिलीवरी नहीं है। हाथ पाँव तेरे हैं तो इसलिए हिल रहा है ना, वो तो ड्रिल करेंगे, एकेडमी में जाएगा, सब ठीक कर देंगे, बट तुम्हारे अंदर से निकल ही नहीं रहा। तुम हाथ पाँव में उलझा दिया कोचिंग वालों ने, ऐसा खड़े होना, वैसा खड़े होना, फर्स्ट टॉपिक लेना, थर्ड नहीं लेना। अरे सब क्या बकवास है यार, जिसके पास दम है वो कुछ भी ले ले। मेरा हाथ है, थोड़ा बहुत हिलता है तो हिलता है यार, जितना जरूरत हो उतना हिलाओ। तो ये सब सुपरफिशियल चीज़ों पे फंसा दिया आपको, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट इज लो इंटेलेक्चुअल और पुअर जनरल अवेयरनेस। देखो पुअर जनरल अवेयरनेस, पुअर जनरल में कंटेंट नहीं है। कुएं के मेंढक हो, नॉट सीधा बैठा, कुएं के छेद में उल्टा बैठा, काला चश्मा पहना वाला मेंढक, इतना बुरा हाल। सो आपको कंटेंट भी करना पड़ेगा। लैक ऑफ इनसाइट, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं है। तो हम देखेंगे YLC में ये कैसे होता है और SSB के प्राइवेट कोचिंग में सिग्नेचर कोर्स में क्या होता है, आपको फर्क पड़ेगा।
तो फिर मैंने बताया कि भैया आपको कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस करना है। तो देखते हैं YLC में इसके लिए कितना सिलेबस है। तो YLC का सिलेबस में देखो, सबसे पहले रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड ग्रामर। ही का शी बोलते हो तुम लोग। सीता वॉज ए लेडी फ्रॉम द विलेज, ही वेंट टू, अरे सीता ही नहीं है, सीता शी है, वही छोटी छोटी चलती हो जाती है ना। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, समझना। हम आज रीडिंग कर रहे हैं लेकिन वी आर रीडिंग, वी आर नॉट कॉम्प्रिहेंडिंग। इसके कारण जीपी नहीं होता, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं होता, उसके कारण टीएटी का पिक्चर एनालिसिस नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ लेकिन अंदर वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो कॉम्प्रिहेंशन एंड इसके ऊपर 50 पीरियड इसी के ऊपर लगा रखे, 50 पीरियड है ना। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल, आपको कोई शशि थरूर नहीं बनना, बट एक फंक्शनल ग्रामर तुम लिखो तो कुछ तो सही हो, साला कुछ भी नहीं, ही का शी का ही, पता नहीं क्या, ही लिव्स गोवा, अरे ही लिव्स इन गोवा लिखो ना यार। देन स्पीकिंग स्किल, दिस इज रीडिंग। नेक्स्ट इज स्पीकिंग, वर्बल, है ना। इसमें लेक्चरेट, अब लेक्चरेट का मतलब एसएसबी का वो नहीं है, इट इज कंटेंट बिल्डिंग यार। 5 से 7 मिनट साला आगे खड़े हो और बोलो, प्रेशर आएगा तो कंटेंट बिल्ड करो और बोलो, ये काम आपको भी करना पड़ेगा। फिर थोड़ा बहुत ग्रुप डिस्कशन, फिर पैनल डिस्कशन। व्हाट इज पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में फर्क बताना। ग्रुप डिस्कशन गोल बैठ के, पैनल मतलब 2 पैनल है, या ऐसे एक सर्कुलर में जैसे हमारा टीवी में डिबेट होते हैं, पैनल डिस्कशन, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा। एक्सटेम्पोर मतलब ऐसे उठा के खड़ा कर दिया सीधा, कोई लेक्चरर की तरफ 3 मिनट खड़े हो जाओ, सुरेश खड़े हो जाओ, चलो इस टॉपिक के ऊपर बोलो। अरे क्या बोलूँ, एक्सटेम्पोर, बस खटाक से। क्योंकि आप एक्सटेम्पोर का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू में अचानक जब वो क्वेश्चन पूछता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, आप लॉस्ट हो जाते, प्रेशर आ जाता है, लड़के बोलते सब ब्लैंक हो जाता। क्यों? क्योंकि वो टेंडेंसी नहीं है। अब ये मुझे बताना वोल्टे फेज क्या होता है, मुझे बताना ये क्या बताना है, इसके पीरियड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट इज व्हाट, किसी सेंटेंस को बोलना है और जस्ट ए मिनट करके उसको कुछ कंप्लीट करना है आपको, उस तरह से कोई जस्ट ए मिनट, मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसको काउंटर कैसे करना है, जस्ट ए मिनट करके उसको काउंटर करके कैसे करते। जस्ट ए कम्युनिकेशन बिल्ट अप एंड लॉजिकल थिंकिंग का एक एक्सरसाइज है। टेल ए टेल, एक कहानी सुनाना। कभी कभी क्या कर देंगे, वो एक कहानी बिल्डअप कर देंगे, आधे में छोड़ देंगे और उसको आपने आगे बनाना। कभी कभी क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 10 लड़के, फर्स्ट बंदा एक कहानी का बनाएगा, फिर वो अगला उसमें जोड़ेगा, फिर उसमें जोड़ेगा, ऐसे करके एक फनी कहानी बनता चला जाएगा। टेल ए टेल। कभी कभी आप अकेले बना दोगे, क्या बोला यार, एक अगर तुम चांद पे गए होते तो कैसा होता, एक कहानी बना दो। बेसिकली इमेजिनेशन बिल्ड करने के लिए, है ना। तो पहला रीडिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा राइटिंग स्किल। एक्सप्रेशन 3 टाइप के है ना। राइटिंग में देखो, पैरा राइटिंग स्किल एंड पिक्चर स्टोरी राइटिंग। नाउ दिस पिक्चर स्टोरी इज लाइक अपना टीएटी वाला टाइप का है, तो ये अपना 10% जो एसएसबी का आ गया। पैरा राइटिंग, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में कट पेस्ट हो गया है। पहले हमारे टाइम में ऐसे लिखना पड़ता था, लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, आजकल वो सब ट्रेंड खत्म हो गया। आजकल सब गूगल कट पेस्ट, गूगल बाबा। अब कट पेस्ट और फिर व्हाट्सअप आ गया, तो LOL, व्हाट्सअप हैंगिंग, पता नहीं क्या LOL करते रहते हो। उसके कारण व्हाट हैज़ हैपेंड इज योर राइटिंग स्किल हैज़ रिड्यूस्ड। आपका जो एफिशिएंसी टू राइट, 2 तरीके से, एक क्योंकि थिंकिंग नहीं है, ऐसे LOL कट पेस्ट करते हो, तो कट पेस्ट करने से क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होता, कॉम्प्रिहेंशन, समझ नहीं बिल्डअप होता। और दूसरा क्योंकि लिखने का टेंडेंसी कम हो गया, बिकॉज आजकल सब टाइपराइटर, कंप्यूटर और ये सब होने के कारण जो है आपका राइटिंग स्किल्स हैव गॉन डाउन। और इसका असर क्या होता है, टीएटी में जब वो अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट में टीएटी होता है, प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है, आप लिख नहीं पाते हो। सो यू हैव टू इम्प्रूव। एंड राइटिंग, पैरा राइटिंग, राइटिंग ए पैरा ऑन थॉट ऑफ द डे। एक थॉट ऑफ द डे होता नहीं कॉलेज, स्कूल में और ऑफिस में, थॉट फॉर द डे, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना, उस थॉट के ऊपर अपने विचारों को लिखना, बेसिकली कुछ ना कुछ क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक थॉट है, उसके ऊपर आप अपना एक पैराग्राफ लिखो, 15 20 25 लाइन का, ताकि आपका माइंड सोचना शुरू करे। तो कर सकते हो ये सब आप भी, है ना। एंड राइटिंग 3 सेंटेंसेस, वर्ड ऑफ द डे, एक वर्ड उसके ऊपर 3 सेंटेंसेस। बेसिकली ये WAT का के लिए सोच की तैयारी है। हम यहाँ पे कराते हैं उसको, बट हम उसको लॉ ऑफ कर्मा के बेस पे कराते हैं। लॉ ऑफ कर्मा आपको पता होगा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके ऊपर देखते हैं ना। नेक्स्ट इज बुक रिव्यू। अब सर्विस एंट्री लोगों का ज़्यादातर जो है, मैं भी सर्विस एंट्री, हम लोग को हॉबी भी कुछ लड़कों के होते हैं, ज़्यादातर हमारे कुछ नहीं होते। तो YLC क्या बोलता है, भैया हम तुमको 5 महीने दे रहे, 5 महीने में तुम बुक रीडिंग एक हॉबी ऐसा पकड़ सकते हो जिसको तुम डेवलप कर सकते हो। तो 5 महीने में अगर तुम हर महीने 2-2 बुक या एक भी बुक कर ले, या 1.5 बुक भी कर लिया, तब भी तुम्हारे कम से कम 6-7 बुक हो जाते हैं।
तो ये काम आप भी कर सकते हो यार। अगर आपका हॉबी से इंटरेस्ट नहीं है, झूठ क्यों लिखना है? साला बोलते हैं मेरा हॉबी गार्डनिंग है, करते क्या हो? मम्मी ने गमले में एक बार टमाटर डाला, छिलका, उसके अंदर से एक पौधा आ गया, तुम उसको पानी डालते, बोलते मैं मेरी हॉबी कुकिंग है। क्या करता है? मैगी बनाता हूँ, अंडा बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ। अरे यार क्यों ऐसे सब मार रहे हो? मत करो। अगर तुम्हारा हॉबी नहीं है कोई बात नहीं, अब करो। अब से एसएसबी तक के बीच में तुम कम से कम और कुछ ना 2 बुक पढ़ लो, 3 बुक पढ़ लो। मैंने वो 24 बुक का वो एक लिस्ट भी दिया हुआ है। और ना भी हो तो साला एक बुक पकड़ो यार, शिव खेरा का यू कैन विन पकड़ लो, या स्टीफन कोवे का 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पकड़ लो, कुछ एक पकड़ो। नाउ वन थिंग यू टू अंडरस्टैंड इज इट इज़ नॉट ओनली बुक पढ़ना, इट इज़ नॉट ओनली बुक राइटिंग, यू हैव टू सी कैन यू इम्प्लीमेंट समथिंग आउट ऑफ दैट। उसमें से एक चीज को इम्प्लीमेंट करो। इट इज़ लाइक अदरवाइज आप क्या हो जाएगा, जैसे होटल में जाके मेन्यू कार्ड पढ़ लिया, मेन्यू कार्ड भरने से पेट तो नहीं भरेगा, मेन्यू कार्ड पढ़ने से नहीं चलेगा, आपको भोजन खाना पड़ेगा, उसको पचाना पड़ेगा। उसी तरीके से बुक पढ़ने से नहीं फ़ायदा, बुक को समझ के पचाना पड़ेगा और उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। धारणा, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। Otherwise, all this what I'm talking is knowledge. Knowledge is not power. Knowledge when implemented, then it becomes power. So book review आप भी ये कर सकते हो। और हर बुक को जो भी, मान लो एक बुक करो यार, 7 हैबिट्स, 7 हैबिट्स है, साले 7 हैबिट में से अपना कोर पकड़ो और उसको इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि पूछते हैं एसएसबी में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है, सो व्हेन यू से कि बुक रीडिंग, विच बुक यू हैव रेड? आई हैव रेड दिस, ओके, टेल मी समथिंग अबाउट दैट, टेल मी अबाउट द ऑथर, टेल मी व्हाट आर द अदर बुक्स दैट ही हैज रिटन, व्हाई डिड यू लाइक इट, व्हाई डिड यू चूज इट, and anything that you could implement, then you have to tell. And you cannot just say it, you have to, that effect has to be seen in you in terms of the changes. Next is letter writing and essay writing. ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका दिमाग का, माइंड एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन आ जाए और सोचे, विचार करो। सो ये सब लूप टू थिंकिंग में मदद करता है। तो आप इसको लिखना, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को पूछना भी। इसके अलावा एडवांस स्किल्स में फोनेटिक्स है ना, तो क्योंकि सर्विस एंट्री होते हैं, हमारा माहौल गांव का होता है, ज़्यादातर लड़के गांव के होते हैं। तो हम गवर्नमेंट स्कूल में होता है, इंग्लिश होता नहीं है, तो हमारा वो बड़ा एक्सेंटेड इंग्लिश हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। सो उसको थोड़ा सुधारने के लिए फोनेटिक्स है ना, कैसे बोलना, क्या बोलना है, एंड डिक्शनरी का यूसेज। सारा वर्ड WOT में आता, वर्ड ही नहीं पता, उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आता। मीनिंग समझ में आएगा तो लिखोगे कैसे? तो आपको डिक्शनरी यूज़ करने का ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज फिर कुछ टेस्ट विस्ट कर दिया इस तरह से। तो यू कैन सी दिस फेयरली गुड अमाउंट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। आई थिंक यू ऑल शुड डू इट ना। सो नेक्स्ट इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में देखो, इसको और डिटेल में दी 50 पीरियड में, जो उसमें पहले ब्लॉक में दिया था, अब इसको डिटेल में। रीडिंग स्किल्स एंड ग्रामर स्किल में, आफ्टर ए क्लास ऑन स्किल ऑन रीडिंग, स्टूडेंट विल बी मेड टू प्रैक्टिस रीडिंग सेलेक्टेड पैसेजेस एंड आंसर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ये इट इज़ लाइक आपका एनडीए में भी आता है, एक पैराग्राफ लिख देते हैं, उसको आपको समझना होता है, उसके बेस में कुछ क्वेश्चन है। तो इसी तरह से जब आप पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे, तब आपका ये डेवलप होगा, वरना आप फिर टीएटी रटते रह जाओगे। एंड ग्रामर में देखो क्या लिखा हुआ है, functional grammar through usage will be explained, adequate practice will be given, students to have purchase a copy of essential English grammar by Raymond Murphy। तो कोई ग्रामर का बुक है रेमंड मर्फी, तो पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। तो आप लोग भी करना है यार, आप लोग साला क्या ऐसी फालतू के टीएटी वेटी में उलझे हुए हो, है ना। नेक्स्ट स्पीकिंग स्किल के जो 110 क्लास के बारे में देखो, 110 क्लासेस है, डोंट लिमिट टू 110। लेक्चरेट है ना, प्रिपेयर्ड लेक्चरेट विल बी डिलीवर्ड फॉर 5 to 7 मिनट्स। तो 3 मिनट एसएसबी में, लेकिन प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं? 5 to 7 मिनट्स। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप युद्ध में जा रहे हो सकता है एक भी गोली यूज़ ना करना पड़े, लेकिन आपको एडिक्वेट ले जाना। तो 3 मिनट का बोलना है, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं? 7-8 मिनट का। आप भी करो, हर टॉपिक को लो अपना और उसके ऊपर पहले कंटेंट को बिल्ड करो, पहले कंटेंट को इन करो, फिर आउट करो। देखो एसएसबी में जाना, 3 चीज़ को खोलना पड़ेगा। कितने चीज़ को लिख के बताना कमेंट में, कितने चीज़ को? 3। हेड, IQ, हार्ट, EQ एंड थ्रोट कम्युनिकेशन, तीनों को खोलना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर कम्युनिकेशन यार। इसको कर सकते हैं यार, मैंने किया यार, मैं कितना साला, मेरी कौन सी 10th में 53% था, 12th में ड्रॉप आउट, आई हैव डन इट यार। तुम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो रे, तुम्हें अपने अंदर के उसको जगाना है। इट इज़ पॉसिबल यार, आई हैव डन इट। ठीक है ना। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन एंड पैनल डिस्कशन। सो लिस्ट ऑफ टॉपिक विल बी डिसाइड बाय GTO एंड IO। तो GTO एंड IO जो ट्रेनिंग में जाते हैं वो अपना कराते हैं, जो भी कराते हैं, टॉपिक दे देंगे, GTO अपना बोलते रहो। ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह आप कर सकते हो। पहले ग्रुप डिस्कशन, बाद में पहले इंडिविजुअल पब्लिक स्पीकिंग करो, क्योंकि अगर आप खुद को इंडिविजुअली डेवलप नहीं करोगे तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। और जब आप शीशे के सामने या दूसरे लोगों के सामने खड़े होकर बोलोगे, बैठ के नहीं, खड़े होके, तो एक प्रेशर भी ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि आप खड़े हो, दूसरे लोग बैठे हो,
और आप अकेले खड़े हो तो प्रेशर ज़्यादा आता है। वेरस ग्रुप डिस्कशन में वो प्रेशर नहीं आएगा, गोल बैठे कुछ नहीं आता, आई एग्री विथ यू, यस नॉट स्पोकन बोलते रहो। तो ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा मैं तो बोलूँगा आप लेक्चरेट और एक्सटेम्पो स्पीक का करना, और मस्ट नो स्टफ मैं बहुत बार बार बोलता हूँ। तो मेरे जो एफओसीपी के लड़के हैं या लड़कियाँ, उन लोगों को जब आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो यू शुड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज़ दैट एंड मस्ट डू दैट, ताकि ऐसा ना हो कि आपके पास गोलियों की कमी हो जाए। बंदूक को भी ठीक करना गोलियों होगा यार, कैसे नहीं होगा, होगा। तो उस पर ध्यान देना है। पैनल डिस्कशन है ना, फिर एक्सटेम्पोर, कैंडिडेट टू स्पीक फॉर 2-3 मिनट्स। तो एक्सटेम्पोर जैसे लेक्चरेट होता है, लेक्चरेट तो एक्सटेम्पोर है बट उसमें 3 मिनट मिलता है। यहाँ देयर इज नो 3 मिनट, जस्ट सिंपली सुरेश कम है स्पीक, ठक। इससे प्रेशर बिल्टअप होता है, उस प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हैं। सो आपको यू हैव टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। तो इसको करना, जब इसको करोगे तो नेचुरली योर एबिलिटी टू पुट अक्रॉस योर आइडिया, क्योंकि आप आइडिया पे काम कर रहे हो और एबिलिटी पे भी। एबिलिटी इज द कम्युनिकेशन स्किल एंड आइडिया इज द कंटेंट। सो एडिक्वेटली बिल्ड करो विथ ईज, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो ईज हो जाएगा। क्लैरिटी, आपके मन में क्लैरिटी तो सुनने वाले को भी क्लैरिटी आएगा, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। उसके बाद देखो, ये मैंने बोला था इसको चेक करना, वोल्टे फेस है ना। इट्स अ 2-minute एक्टिविटी वेयर द स्पीकर स्पीक्स फॉर 1 minute फॉर द मोशन एंड गेटिंग द सिग्नल फ्रॉम द टाइमर स्टार्ट्स एंड कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ स्पीकिंग अगेंस्ट। ना ये क्या है, आप ही एक बार फॉर के लिए बोल रहे हो और आप ही उसी टॉपिक के ऊपर, जब आपको इंडिकेशन देते हैं उसी टॉपिक पे आप स्विच कर देते हो। फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, व्हाट आर द सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, इट इज डेट्रीमेंटल टू द यूनियन ऑफ इंडिया और इट इज एडवांटेजेस टू द यूनियन। तो आप पहले डेट्रीमेंटल का बोलोगे और जैसे उन्होंने इशारा किया आपको चेंज करके सडनली आपको दूसरे साइड से, मतलब हेड भी बोलना टेल भी। इसका एक फायदा यह है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपका पर्सपेक्टिव एनलार्ज होता है। आप इस साइड से भी देख सकते हैं, इस नॉर्मली हम क्या करते हैं एसएसबी के लिए, या नॉर्मली इंटरेस्ट होता नहीं करंट अफेयर्स में, तो हम क्या करते हैं न्यूज़ सुन के न्यूज़ सुनाते हैं। नहीं, न्यूज़ नहीं सुनना है, न्यूज़ सुनना है लेकिन हमको विश्लेषण करना आना चाहिए। तो हमें किसी भी चीज़ का दोनों पहलू पता है। अगर मान लो ये मोबाइल है, अगर ये न्यूज़ है तो हमें ये पहलू भी पता होना चाहिए, ये पहलू। तो ये वोल्टे फेस में क्या होता है, एक ही बंदे को एक ही टाइम में पहले एक साइड से बोलना है और सडनली स्विच करने से दूसरे साइड से बोलना है। तो उससे आपका माइंड फ्लेक्सिबल भी बनता है और किसी भी चीज़ के लिए अलग अलग दृष्टिकोण भी डेवलप होता है। तो मुझे बताना वोल्टे फेस क्या है। तो आपको हर टॉपिक के ऊपर, कोरोना वायरस हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, अभी ये जो यूएस का निमिट आया हुआ है, जो भी वो अपना हुआ रहा है साउथ चाइना से, उसमें दोनों पक्ष समझना, और दोनों क्या धीरे धीरे आपको मल्टीपल पक्ष समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट है ना, 6 पीरियड। ये देखो क्या है, अ फ्लुएंसी एनहांसिंग एक्टिविटी वेयर द ग्रुप ऑफ 6 to 8 कैंडिडेट्स आर गिवन अ वर्ड टू स्पीक। एक वर्ड दिया और उसके ऊपर आपको बोलना है। Anyone can take his turn to start speaking. If he takes a pause or repeats a word or words, someone else can clap and takes on indulging a new meaning of the word. Game continues and the person speaks at the end of 1 minute. At the end of 1 minute, declares winner. Basically, एक वर्ड के ऊपर बीज है, इस बीज के ऊपर अपने विचारों से उसके ऊपर सोच के पेड़ बनाना। और बेसिकली ये सब क्यों कर रहे हैं, आपके थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसके ऊपर नेट पे भी सर्च कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज टेल ए टेल, कहानी सुनाना बोला था। कैंडिडेट हैज़ टू नरेट अ टेल विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड अप्रोप्रिएट जेस्चर्स। तो आपका थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को सिंक्रनाइज करना है, कॉन्ग्रुएंस लाना है विचारों में, बोली में और एक्शन में। उसके लिए क्या है, एक कहानी सुनाना जिसमें आपको बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करना है और अप्रोप्रिएट जेस्चर्स भी और वॉइस मॉड्यूलेशन भी करना, ताकि आप अपने वॉइस को उठाना। तो ये सब आपके बहुत अलग अलग तरीके हैं। नो देखो, राइटिंग स्किल में पैरा राइटिंग स्किल एंड पिक्चर स्टोरी में स्किल्स फॉर राइटिंग ए गुड पैरा विल बी टॉट टू देम। तो ट्रेनिंग दिया जा रहा है स्टूडेंट्स टू बी मेड राइट स्टोरीज अबाउट 24 पिक्चर। तो ये TAT का प्रैक्टिस ऐसा है कि 24-25 पिक्चर्स में, है ना। राइटिंग ए पैरा ऑन थॉट फॉर द डे एंड राइटिंग 3 sentences of word of the day. Each day in rotation, one candidate come prepared to analyze the thought, saying each candidate is expected to write a para as OTW. OTW means the own time work on the same. One more candidate introduces a word and gives 3 sentences. All students are encouraged to use the words of the day in their conversation and writing and are tasked to write minimum 3 sentences as own time work. इसका मतलब क्या है, किसी स्कूल में भी होता है, किसी ऑफिस में भी होता है, एक नया वर्ड और आपको उस वर्ड को समझना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसको उस वर्ड को इस्तेमाल करना है और आपके वोकैबुलरी में ऐड करना है। तो आपको भी कर सकते हो। फिर बुक रिव्यू फॉलोड बाय ए थियोरी क्लास, स्टूडेंट्स शुड बी टास्क टू राइट 2 बुक्स रिव्यूज ड्यूरिंग द कोर्स। तो ये 5 महीने में 2 बुक रिव्यू लिखने के लिए बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, हर महीने में आप एक कर सकते हो, लगन हो तो।
है ना. Next is letter and essay writing. Theory classes will be taken on technique of letter writing and essay. Students will be tasked to write 10 essays. 10 ऐसे लिखवा रहे हैं. देखो किस लिए? ताकि आपका राइटिंग स्किल, थिंकिंग स्किल इंप्रूव है. ऑफ मोर देन 500 वर्ड्स. आप भी कर लो. टॉपिक चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं दे देता हूँ आपको. बिल्कुल मैं दे दूंगा आपको, है ना. विथ एक्सेप्टेबल ग्रामर एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक. तो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर भी ध्यान दे रहा है. अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है, तो अगर ऐसे राइटिंग करना है या आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तो आई कैन गिव यू सर्टन टॉपिक विच विल हेल्प यू बोथ इन योर राइटिंग स्किल्स इंप्रूविंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर योर SSB. इस तरह के टॉपिक मैं भी यहाँ पे अपने बच्चों को जब ऑफलाइन क्लास होता था कराता था. आजकल ये कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑनलाइन में देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन. तो हम अपने तरीके से कराते हैं, बट इट इज़ मोर पावरफुल व्हेन यू आर ऑफलाइन क्लासेस, है ना. एडवांस स्किल में फोनेटिक्स में देखो क्या बेसिक नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स दैट वुड बी टॉट सो दैट द कैंडिडेट्स वुड बी कंफर्टेबल रेफरिंग टू अ स्टैंडर्ड डिक्शनरी. तो डिक्शनरी का यूसेज, वोकैबुलरी बढ़ाना. डिक्शनरी स्किल, यूज ऑफ डिक्शनरी एज अ लैंग्वेज लर्निंग टूल, क्योंकि वोकैबुलरी ठीक नहीं है, आपको सारा WOT का वर्ड समझ नहीं आता, है ना. स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू परचेज ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज डिक्शनरी. तो वो डिक्शनरी जो होता है उसको ज़बरदस्ती खरीदवाते हैं ना. एंट्रेंस टेस्ट, ये फिर ये टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है. तो ये तो हो गया. हमने क्या क्या देखा? हमने फिजिकल देखा और IQ में हमने पावर ऑफ एक्सप्रेशन देखा. अभी आगे जो है वो EQ, SQ और IQ के बचे हुए, मतलब रीजनिंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, इफेक्टिव इंटेलिजेंस. इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. तो उसके लिए लीडरशिप, एथिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर बात किया हुआ है. तो इसमें ब्लॉक सिलेबस में आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ. तो इसमें लीडरशिप, एथिक्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर 180, और आपको पता है ये 1/4 था, 1/4 यानी 25% था ये, है ना. 80 पीरियड्स है. और बिहेवियरल ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर 28. व्हाट इज बिहेवियरल ट्रेनिंग मॉड्यूल? योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट. तो पर्सनालिटी इधर, लीडरशिप इधर, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप में, और बिहेवियरल ट्रेनिंग ये. तो इसमें आपका EQ रिलेटेड हो गया. तो ये आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लीडरशिप के ऊपर. अब ये चीज़ें SSB में अनफॉर्चुनेटली हम बात ही नहीं करते. हम तो TAT-WT में उलझा के रख दिया आपको. पता नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है. वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, दैट्स ओके. सो अब आप थोड़ी देर के लिए अगर आप पॉज लो, तो दिस इज़ द कोचिंग मॉडल. ये सिग्नेचर मॉड्यूल में हम क्या कराते हैं आपको? फिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इंट्रोड्यूस टू SSB प्रोसीजर, स्टेज 1 करंट अफेयर्स, साइक टेस्ट करा दिया, इंटरव्यू करा दिया, और इसमें हम बोलते हैं नंबर 1 है. अब YLC यंग लीडरशिप कोर्स में हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की बात नहीं कर रहे हैं, लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे 180 पीरियड एंड 28 पीरियड, टोटल 208 पीरियड इज ऑन लीडरशिप, एथिक्स एंड पर्सनालिटी. एथिक्स को मैं बोलता हूँ वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस, SQ, है ना. लीडरशिप हो गया, भैया आप फौज में जा रहे हो. एंड देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी 4 पहिए आपको पता ही है. एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग, तो ये हो गया. एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू कंपेयर इट विद द SML मॉड्यूल. तब आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो, ये और ये तो एकदम सही है. इनफैक्ट मैं तो अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा. SML का कंटेंट इज़ मोर पावरफुल दैन YLC का कंटेंट. आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई मीन इट बिकॉज आई एम कंडक्टिंग इट फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर कोऑपरेट्स, फॉर कैंपस, कॉलेज टू कैंपस, लाइफ स्किल, यूनिवर्सिटीज़, Annamalai, and I'm a faculty for Annamalai University for the MBA students. And I have done a complete MBA on self-management leadership. So with due respect to YLC and the content creators, SML ka content is more stronger than this content, and the delivery is 500 times more stronger, with due respect, because I am into it for last 12 years including my service career. So anyway, वो तो बोलने की बात है. आप जो लोग SML का मॉड्यूल देख रहे हैं वो समझ में आ जाएगा. Now what is interesting is 3 ट्रेनिंग मॉड्यूल है. एक ISO सर्टिफाइड एंड सिग्नेचर कोर्स 5 दिन का, एंड ये 14 दिन का, विच इज़ बेस्ड ऑन TAT-WT डेवलपमेंट. एक ये है जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, और एक SML है जो AFOSUP का. आई एम ऑल्सो प्राइवेट वाला. व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू इज कंपेयर द 3. आपको सिलेबस तो भी मैं पीछे का दे ही दिया, आगे को भी मिल जाएगा. इनको कंपेयर करना, देन आपको समझ में आएगा कैसे हम आपको मूंगफली खिला रहे हैं ISO के नाम से. मुझे आप एक और चीज़ बताना, अगर गणेश बाबू ISO सर्टिफिकेट ले लेता कुछ पैसे खर्च करके, 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके, तो क्या मेरा ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ जाएगा? हाँ, मार्केटिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा.
तो समझना आईएसओ सर्टिफिकेशन से कैसे मेरे ट्रेनिंग की क्वालिटी डेवलप होगी, जब मैं पर्सनालिटी की बात ही नहीं कर रहा। क्या आईएसओ सर्टिफिकेशन करने से टीएटी की स्टोरियाँ एसएसबी को एक्सेप्टेबल हो जाता है? तो चेक करना, मुझे बताना आईएसओ लेने से ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है। 2.5 एकड़ की ज़मीन होने से ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होगा जब 250 ग्राम की मशीन नहीं चलती। जब ये दिमाग नहीं चलता तो 250 एकड़ की ज़मीन क्या करोगे आप, सोच के बताना। तो इसको कंपेयर जरूर करना। जब इसको कंपेयर करोगे देन यू विल नो कि हम आपका कैसे बेवकूफ़ बना रहे, और तब आपको पता चलेगा कैसे आप बंदर की तरफ फंस गए हो। कोचिंग वाले भी पीटते हैं, एसएसबी भी पीटते हैं, फिर घूमते रहते हो इधर उधर। तो भाई ये बंदर के स्वरूप से बाहर निकलो और अपने शक्तियों को पहचानो, है ना। नाउ वाईएलसी का जो आगे का सिलेबस है, जो मैंने ये बताया, ये वाला सिलेबस, इसको क्योंकि ये लंबा है और ये देखो पिछला मॉड्यूल तो कम्युनिकेशन स्किल था, वो तो अब आपका कमज़ोर है तो आपका एजुकेशन सिस्टम सब है, लेकिन असली तो ये है। अगर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाए, ये डेवलप ना हो, तब भी तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो मैं वाईएलसी का जो पार्ट 2 बनाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसा फीडबैक आता है, क्योंकि ये लंबा भी हो गया है, तब मैं इसको बनाऊंगा पार्ट 2। एंड पार्ट 2 इज़ द मेन क्रक्स, जहाँ पे आपका लीडरशिप, पर्सनालिटी, एथिक्स, वैल्यूज़ एंड इमोशनल डायमेंशन पूरा आता है। एंड देन वी विल डू दैट। तो उसको करेंगे, उसके लिए मेरे को आपको फीडबैक चाहिए ना। जो लोग, दोबारा मैं बता रहा हूँ, AFOSOP लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम हर मंडे से शुरू होता है। नेक्स्ट इज कमिंग मंडे, इनफैक्ट एवरी मंडे। तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर देना, तो जो भी अगला बैच होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड आई विल सजेस्ट यू, अगर थोड़ा सा भी मेरी बात समझ में आ रहा है, डोंट गो ओनली फॉर SSB ओरिएंटेशन। आप डिमांड करो मुझसे भी और किसी और से भी कि सर ये हमको ये धोखा मत दो, ये 10% की चीज़ को 100% बना के आइसिंग ऑन द केक है ना, हम आइसिंग बेच रहे हैं आपको फुल पैसे पे, केक नहीं दे रहे। केक इधर है, आपको वाईएलसी का सिलेबस से मिल गया होगा। सो व्हेन यू कम टू मी, आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ टेक द केक अलॉन्ग विद द आइसिंग, डोंट ओनली रन बिहाइंड द आइसिंग। केक का आइसिंग की कोई कीमत नहीं है, केक नीचे होता है। तो फाउंडेशन, ये केक है, ये केक है मजबूत, और ये SRT, TAT, WAT ये सब क्या है, आइसिंग ऑन द केक है। तो आइसिंग ऑन द केक के पीछे ना भागो। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप इसको मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करना 8275577650 इस नंबर पे। दोबारा नंबर बोलता हूँ, 8275577650। हर मंडे को नया बैच शुरू होता है। एंड आई एश्योर यू, इससे स्ट्रॉन्गर मॉड्यूल आपको विद बेटर डिलीवरी मिलेगा। ये मेरा अपना पर्सनल वादा है। और ना हो तो 500% क्लैरिटी, ना हो तो मनी रिफंड, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्यों। एंड आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वाईएलसी, आई एम नॉट चैलेंजिंग वाईएलसी के अपने वो हैं, 5 मंथ्स का है। मेरे को अगर 5 मंथ्स मिल जाए मैं तो टोटल कर दूंगा। मुझे तो ये 2 हफ्ते तो मुझसे होता ही नहीं, मुझे तो 1 महीने भी कम मिलता है। मुझे अगर 2 महीने या 3 महीने एक कैंडिडेट मिल जाए और उसको मेरे तरीके से अगर अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर धक्का मार सकता है, देन आई थिंक इट कैन हैव गुड इम्पैक्ट। सो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि फीडबैक, मैंने आज अभी क्या क्या किया। मैंने इसको किया, इसको किया और इसको किया, इसको छोड़ दिया है। तो यहाँ से आगे इसको नहीं करेंगे। यहाँ से आगे हम जो है अगले वाईएलसी का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें करेंगे। बट उससे पहले मुझे फीडबैक चाहिए। प्लीज़ गिव मी फीडबैक कि हैज़ दिस प्रेजेंटेशन हेल्प्ड यू, और इससे क्या आपको फ़ायदा हो रहा है। और ये भी बताना कि ISO, वाईएलसी एंड AFOSOP में क्या डिफरेंस दिख रहा है, एंड कहाँ पे आपको थोड़ा सा ईमानदारी दिख रहा है और कहाँ पे एकदम बिजनेस दिख रहा है। और मैं कोचिंग वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अब तो सुधर जाओ, कब तक हम TAT में उलझा के रखेंगे बच्चों को। तो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली think on those lines. Let there be integrity in the way we are conducting. Let the means adopted by us in training these young future generation who have to lead the armed forces, let us not cheat them, and in turn cheat the system and the nation। थोड़े से पैसों के लिए, पैसे कमाओ, लेकिन पैसे कमाने का जरिए को भी हमें ठीक करने की। So that's my advice to all of you. Thank you and may God bless you. And candidates, ये बंदर बनना छोड़ दो, बहुत बंदर बन चुके हो। हाथ को निकालो, मुट्ठी खोलो, हाथ को खींचो और इस नारियल को फेंको और अपनी सोच को चेंज करो। Thank you and may God bless you. Thank you very much.